Good evening, dear students. Now attendance: Ayushi Singta, Akanksha Sharma, Ankita Changra, Kalpana Sharma, Mokshika, Prabjot, Shakshi, Sapna, Shrestha Rana, Sabika Ali, Swati, Amarji, Amarpreet, Himanshu Saini, Manish Kumar, Nitesh Dubey, Sushant, Nilesh. So I have not taken the names of Shakshi, Saurabh Rana, Lakhan and Vivek. They are out because they are not attending the class, so I will not call their attendance. Now I will warn Shrestha Rana, Manish Kumar and Nitesh Dubey also. From the next time, I will not call their attendance also. Those who will not attend to my lecture, I will not call their attendance. I will mark them absent without calling their attendance. They may be present or absent, but for me, they are absent because they are irregular, very irregular. So before we start the topic, I will give you 1 minute and you start taking your notebooks and pens, etc. Now your 1 minute starts. It is now over, I should say. And in the last lesson, we did problems of adolescence. There were many problems of adolescence: biological problems, aggressive behavior, emotional problem, juvenile delinquency, problem of social status, drug abuse, freedom from control, protection, mental problem, social problem, problem of sex, problem of identity, problem of self-support, problem of stability and adjustment, and last was the career selection problem. So if कोई भी अगर इनमें से पॉइंट आपको समझ नहीं आया है, then I will explain that point again. Kindly write that point in the WhatsApp group. I will explain that point again, maybe in my next lecture or maybe in the WhatsApp group. So kindly note that all the points should be understood by you because they have certain meaning. They are very easy, but if you go out of track, then you will not be able to explain. So kindly, if you do not understand any of these 15 points, then you write that point in the WhatsApp group or maybe in the YouTube channel in comment box. I'll reply that. Now, these problems can be managed to some extent by parents and teachers and family members, even community members. So management of the problems of the adolescents. The first point can be parental guidance, which is very important. Parental guidance. हालांकि बहुत मुश्किल काम है एडोलेसेंट को रास्ते पर लाना. अगर वो बिगड़ गया तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो वाइज पेरेंट्स होंगे, they will guide the teenagers at each step. Adolescents are actually क्यों वो खराब होते हैं? डिस्टर्ब्ड हैं वो, ड्यू टू फिजिकल चेंजेस हैं उनमें, मेंटल चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं उनमें.
So these changes, due to these changes, they are disturbed. They have many adjustment problems, but they are not our enemies. They are our own children and can be guided by us. And the following points should be considered for their guidance. Number one is by sympathetic and affectionate attitude. पेरेंट्स और फैमिली मेंबर जो हैं अपना एटीट्यूड कैसा रखें, सिंपैथेटिक रखें उन बच्चों के प्रति, अफेक्शनेट रखें, क्योंकि वो पहले ही डिस्टर्ब्ड हैं. अगर वो उनकी डिस्टर्बेंस में आप और ऐड कर देंगे कुछ, कहते हैं आग में घी डालने वाली बात हो जाएगी. बट इफ वी आर सिंपैथेटिक टू देम, वी आर अफेक्शनेट टू देम, देन वी कैन मेक देम ऑन द राइट पाथ. Such attitude can make the teenagers free from complexes, क्योंकि उनमें कम्प्लेक्स आ जाते हैं. और कम्प्लेक्स के साथ साथ क्या होता है, उसमें कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं उनके माइंड में. कन्फ्लिक्ट्स एंड कम्प्लेक्सेस. पेरेंट्स को क्या करना है, लिबरल एटीट्यूड रखना है अपना, सो दैट दे डू नॉट गेट इरिटेटेड. इरिटेट नहीं करना बच्चों को. एंड दे शुड फील प्रोटेक्टेड. उनको लगे माँ बाप ही हमारे सब कुछ हैं, हमारे फ्रेंड हैं. सो दे शुड टेल ईच एंड एवरी प्रॉब्लम टू देयर पेरेंट्स. सेकेंड इज बाई डेमोक्रेसी इन द फैमिली. फैमिली में डेमोक्रेसी रखी जाए, सबको चांस दिया जाए काम करने का. पेरेंट्स मस्ट क्रिएट डेमोक्रेटिक एटमोस्फियर. टीनेजर्स को क्या किया जाए, दे मस्ट बी इन्वॉल्व. उनको हर जगह पर इन्वॉल्व करना चाहिए. कोई शादी है, कोई घर में बर्थडे मनाना है, कोई फंक्शन है छोटा मोटा, तो उस सब में इन्वॉल्व किया जाए उनको, एज पर देयर कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है उनमें. बिकॉज इट विल हेल्प देम इन देयर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. बाई डेमोक्रेसी इन द फैमिली. फैमिली में डेमोक्रेसी रखी जाए, डिक्टेटरशिप ना हो दादा की या किसी फादर की या मदर की या दादी की. देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट इन द सेम पेरेंटल गाइडेंस में ही है, फादर मदर कॉर्डियल रिलेशंस. फादर मदर क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं बच्चों के सामने, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं. कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए मदर और फादर में. फादर एंड मदर क्या होने चाहिए, शुड हैव ए कॉर्डियल रिलेशंस. कब, पर्टिकुलरली इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के सामने तो बिल्कुल ना करें, लड़े ना वहां पर. कॉर्डियल रिलेशन रखें, झूठ मूठ में ही हो चाहे. व्हेन द पेरेंट्स डू नॉट हैव हेल्दी रिलेशंस, क्या होगा, टीनेजर्स बिकम इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट हो जाते हैं बच्चे. इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, अपने आप में ही रहना, किसी से बात नहीं करनी, अपने आप में ही खोए रहना. तो एक बहुत मुश्किल काम है. और बाई डेमोक्रेसी इन द फैमिली एंड देन फादर मदर कॉर्डियल रिलेशंस. देन वी हैव कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स. पेरेंट्स का कोऑपरेटिव एटीट्यूड हो, कहाँ हो, टुवर्ड्स स्कूल, टुवर्ड्स कॉलेज, जहां भी बच्चा पढ़ रहा है उधर उनका कोऑपरेटिव एटीट्यूड हो. वहां जाके लड़े ना पेरेंट्स, फिर बच्चे पर बैड इंप्रेशन पड़ेगा अपने पेरेंट्स का. और स्कूल भी हो सकता है उस बच्चे के पेरेंट्स का टॉलरेट ना करे कोई भी इंटरफेरेंस. पेरेंट्स मस्ट कोऑपरेट विद द स्कूल एंड कॉलेज. वेरियस डिफिकल्टीज ऑफ एडोलेसेंट जो होंगी, दे विल बी सॉल्व्ड. कैसे सॉल्व होगी, ड्यू टू कोऑपरेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड द स्कूल. बहुत आसानी से हो जाएगी, इजी मैनर में हो जाएगी. टीनेजर्स विल फील फ्री फ्रॉम टेंशंस एंड वरीज. टेंशन और वरीज से फ्री हो जाएंगे पेरेंट्स जो हैं, और बच्चे भी, टीनेजर्स भी. इसलिए कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए. देन वी हैव द सेकंड पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स, दैट इज पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज. बहुत से पेरेंट्स बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज में जाने नहीं देते. नहीं, घर बैठो, नहीं बिगड़ जाओगे, नहीं गेम्स में नहीं जाना, पढ़ाई खराब होगी. नो, को करिकुलर एक्टिविटीज में
प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करने से बच्चा जो है वो क्या होता है, बहुत वी कैन से कॉन्फिडेंट हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें. एवरी एडोलेसेंट शुड बी एनकरेज्ड टू टेक पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, फ्री फ्रॉम स्ट्रेस और स्ट्रेन. स्ट्रेस और स्ट्रेन से फ्री हो जाता है बच्चा, कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता माइंड पर उसके, क्योंकि खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है. पेरेंट्स शुड एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज. कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं बताइए सबको आपको. डांसिंग हो सकता है, हाइकिंग हो सकता है, ट्रैकिंग हो सकता है, ड्रामाटिक्स है, एजुकेशनल टूर्स हैं, स्कूलों में लगते हैं टूर, उसके साथ बच्चे को भेजना. द टीनेजर शुड बी अलाउड टू चूज 1 or 2 एक्टिविटीज ऑफ देयर चॉइस. और चाइल्ड या टीन बोलते हैं टीनेजर को, टीन भी छोटा वर्ड है, TWN. टीन बिकम्स एक्सट्रोवर्ट. ऊपर बताया था इंट्रोवर्ट. अगर पेरेंट्स आपने लड़ते रहेंगे आपस में टेंशन रखेंगे तो बच्चा इंट्रोवर्ट बनेगा. यहाँ एक्सट्रोवर्ट बनेगा, बाह्यमुखी, मिलकर रहेगा दूसरों के साथ. जब भी कोई बाहर जाएगा तो उसको आनंद आएगा, मेल जोल होगा, सोशल होगा, वो दैट इज एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा. ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक्सट्रोवर्ट होना भी जरूरी है. देन वी हैव रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअलिटी. अगर इंडिविजुअलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना हमारा काम है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि उसका नाम हो, उसको लोग जाने, उसको लोग पहचाने. पहचान, रिकॉग्निशन, इंडिविजुअलिटी का मतलब पहचान हो बच्चे की. क्लास के अंदर अगर मॉनिटर है तो उसकी पहचान होती है. ऐसे गेम्स में अच्छा है बच्चा है तो उसकी पहचान होती है, पढ़ाई में अच्छा है तो उसकी पहचान होती है. तो क्या होना चाहिए, बच्चों की जो हेल्दी ओपिनियन है, कोई अच्छी ओपिनियन है, उसको हमें जरूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए. वी शुड रिकॉग्नाइज द करेक्ट एंड हेल्दी ओपिनियन ऑफ द टीनेजर्स. दे शुड नॉट बी डिस्करेज. उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए. टीचर्स एंड पेरेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर इंडिविजुअलिटी. जो उसकी इंडिविजुअलिटी है, पहचान है, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, विच इज समटाइम्स वेरी यूजफुल. कई बार उनकी जो राय होती है बड़ी यूजफुल हो जाती है. बच्चे कई बार इंटेलिजेंट बात करते हैं, हो सकता है हमारे दिमाग में भी ना आती हो बड़ों के. देन वी हैव रिलीजियस एजुकेशन. एजुकेशन रिलीजियस देने से क्या होगा, उनमें गुड करेक्टर आएगा. हेल्प्स द टीनेजर्स टू डेवलप गुड करेक्टर. एक अच्छा करेक्टर बच्चों में आएगा, बनेगा उनका करेक्टर रिलीजियस एजुकेशन से. तो इसलिए क्या होगा, उनको वेरियस रिलीजियस प्लेसेस पर ले जाना चाहिए बच्चों को, along with the parents. They should take them with them and should show different type of temples, masjids, gurdwaras and others. They should be in the company of parents. The religious speeches, वहाँ पर स्पीचेज चली होंगी, अगर रिलीजियस एटमोसफियर है वहाँ पर तो वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करेगा आपके टीनेजर्स को. तो द रिलीजियस स्पीचेस, जिनको प्रवचन कहते हैं आप, रिलीजियस एटमोसफियर, वहाँ का आनंदमयी वातावरण, वहाँ पर धार्मिक वातावरण, उससे बच्चा बड़ा भारी प्रभावित होता है. सो दिस इज रिलीजियस एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ यू कैन से प्रॉब्लम्स ऑफ द टीनेजर्स. देन वी हैव प्रॉपर सेक्स एजुकेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. जो मैंने पहले भी कहा था, प्रॉब्लम भी थी बड़ी भारी कि सेक्स जो है वो इसमें टॉप पर होता है बच्चे के माइंड में, क्योंकि नए नए उसके जो डेवलपमेंट होती है, कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम भी आती है. तो उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए उसको. किस तरह देनी चाहिए, इन ए फ्रैंक एंड साइंटिफिक मैनर. सेक्स एजुकेशन टू टीनेजर्स मस्ट बी गिवन, मस्ट बी प्रोवाइडेड in a frank and scientific manner. Every sexual problem, जो भी sexual problem होगी बच्चे की, should be explained to him so that his confusion and fear is removed. सेक्स के बारे में जो भी confusion है, जो भी fear है, डर है, उसको वो दूर हो जाए. क्योंकि फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं स्टेज पर, गर्ल्स में और बॉयज में दोनों में. जैसे पहले ही बताया था हमने, डिफिकल्टीज में मेंसेस आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, बॉयज में भी
नाइट ड्रीम्स होते हैं, मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए जॉइंट सिटिंग्स में। हो सके तो लड़के लड़कियों को इकट्ठा बिठा करके बात बताई जाए, टू रिमूव डाउट्स एंड एजिटेशन, ताकि उनके एजिटेशन और डाउट्स दूर हो जाएं। तो सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी गिवन टू मैनेज द प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलेसेंट्स। देन वी हैव 6 पॉइंट, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। तो उनको क्या, एडोलेसेंट्स को क्या करना चाहिए? वी शुड गिव फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो उनको, कोई ना कोई काम दे दो उनको। दिस विल ब्रिंग कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे याद है पिछले साल हमने आपको ही +1 वालों ने +2 को पार्टी दी और बच्चों ने खुद अरेंज किया उसको। एवरीथिंग वाज अरेंज बाय द +1 क्लास एंड इट वाज एन आउटस्टैंडिंग फंक्शन। बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था। आप में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस थी, फ्रीडम दी थी आपको, तो आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, कॉन्फिडेंस आया आप में। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। एडोलेसेंट शुड बी गिवन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सम वर्क और एक्टिविटी। बाय दिस मेथड दे फील फ्री, उनको फ्री लगता है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्फिडेंट, द सक्सेस अचीव्ड make them happy and more confident. Now providing suitable environment, environment भी अच्छा मिलना चाहिए बच्चे को। The teenager must be provided suitable environment। क्या होना चाहिए उसके अंदर? प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, रहने की, ठहरने की, सोने की। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, उसमें सारे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एवरीथिंग शुड बी देयर। प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर फैसिलिटी, सोने को ही बच्चे के पास ढंग से बिस्तर नहीं है, या गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है, तो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा। तो सूटेबल एनवायरनमेंट से बच्चा जो है वो मेंटली और फिजिकली ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स को दूर रखता है, अपने आप से पास नहीं आने देता उनको। देन वी हैव नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए एडोलेसेंट्स की। हर स्टेज की अलग अलग साइकोलॉजी होती है। चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, सिमिलरली एडोलेसेंट साइकोलॉजी है। पेरेंट्स को, गार्डियंस को, दे शुड टीच, दे शुड गिव देम द we can say they should make them aware of the psychology of the adolescents. They will understand various physical, mental, sexual, behavioral changes occurring in them. जो भी उनमें चेंजेस आ रहे हैं उन सबको बच्चा या वो टीन ध्यान से देखेगा, क्योंकि उसको उसकी शिक्षा दी गई है, नॉलेज दी गई है। नॉलेज देने से ही हम हर चीज़ के बारे में उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में, और फिर हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। Then the 9th point is activity based teaching and joyful learning. मजे की बात यह है कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग हो, एजुकेशन मस्ट बी जॉयफुल हो, बच्चे पर बोझ ना हो एजुकेशन, और क्या हो साथ में इंटरेस्टिंग हो, फुल ऑफ एक्टिविटीज हो, एक्टिविटीज करवाई जाए उसके अंदर। दिस विल एक्सप्लोर देयर इनर कैपेबिलिटीज, अंदर की जो कैपेबिलिटीज हैं, योग्यताएं हैं, वो बाहर निकलेंगी बच्चे की, क्योंकि उसको एक्टिविटी करने को मिलेगी, क्वेश्चन आंसर करने को मिलेंगे। माइंड विल बी डाइवर्टेड, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, एंड प्रोग्रेस विल बी शेयर्ड, उसकी प्रोग्रेस को भी शेयर करना चाहिए पेरेंट्स को, पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ उसकी प्रोग्रेस क्या है बच्चे की, वो भी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के साथ जरूरी है। द प्रोग्रेस ऑफ द टीनेजर्स मस्ट बी checked from time to time, and teachers should share with parents and guardians. Then the next point is moral values. Moral values कहाँ से आएंगी? टीनेजर जो है वो क्या करते हैं? lose their moral values in the wrong hands. company of friends, उनकी कंपनी अच्छी नहीं होती, कहीं सिगरेट पीना शुरू कर दिया, कहीं हो सकता है वाइन लेनी शुरू कर दी, हो सकता है चोरी करना शुरू कर दिया, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जिसे कहा था। पेरेंट्स, टीचर्स एंड फैमिली मेंबर्स को क्या करना चाहिए? शुड टेक केयर ऑफ देम, उनका केयर करनी चाहिए। दे मस्ट हेल्प देम टू गिव द नॉलेज ऑफ देयर कल्चर, उनको अपने कल्चर के बारे में बताओ,
उनकी ट्रेडिशंस के बारे में बताओ, कस्टम्स के बारे में बताओ, इन्वॉल्व करो उसको उनमें. दे शुड एनकरेज देम टू फॉलो एंड अडॉप्ट मॉरल वैल्यूज इन देयर लाइफ. मॉरल वैल्यूज को उनकी लाइफ में आने दो, तब जाकर के ये काम होगा. एंड देन द लास्ट पॉइंट इज वोकेशनल एजुकेशन. एजुकेशन जो है वो आज वोकेशनल देने की आवश्यकता है. सिंपल एजुकेशन से आगे जाकर के कोई भी ट्रेड या कोई भी वी कैन से वोकेशन या कोई भी जॉब नहीं मिलती बच्चे को. तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है अपने बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में, उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में पता है, उनको जानते हैं उसके बारे में वो बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है. वो प्रेस ना करें उसको, लेकिन चूज करने के लिए उसका लाइफ में वोकेशन चूज करने के लिए हेल्प करें पेरेंट्स एंड टीचर्स, क्योंकि वो दे नो द इंटरेस्ट, कैपेसिटी, इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द adolescent children. They must guide them to select a suitable vocation. कैसे? As per their qualities, as per their interest. We should not compel them to select a particular area. ये नहीं कि उनको कहा जाए नहीं आप मेडिकल लो या आर्ट्स लो या कॉमर्स लो. No, it should be their choice. Yes, we can guide. Parents can guide them properly. So this vocational education is also very important. So these were the points for we can say management of problems of adolescents. And in the end we can say that adolescence is a period of great stresses and strains, strifes and storms. The teens should be managed properly through intelligent handling, प्रॉपर गाइडेंस एंड एजुकेशन. तो ये था ये चैप्टर जिसमें कि हमने एडोलेसेंट के बारे में बताया था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स एंड हाउ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी मैनेज्ड. एंड इन द नेक्स्ट लेसन और वी कैन से नेक्स्ट आर्टिकल वी विल स्टडी अबाउट मेंस्ट्रुएशन. सो टिल देन थैंक यू वेरी मच. पिछला काम बहुत से बच्चों ने नहीं किया है. मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नहीं कि पिछले चैप्टर का उससे पिछले का कई बार मैं काम दे चुका हूं. एंड फाइनली आई विल टेल which children have not done their homework. Kindly do the homework, and those who are not attending the classes, I will not take their attendance, I will not mark their attendance at all. Thank you very much.